Good morning, students. We are in lesson 11, motion and measurement of distances. In previous class, we have already learnt about different kinds of transport like land transport, water transport and air transport. Even I had sent you a link that is based on story of transport. I hope you must have seen and understood. So students, let's start our new topic, that is measurement. Measurement is an important activity of our daily life. In our day-to-day life, we need to compare many things like who is taller, what is the distance between the two places, what is the weight of the particular thing. So measurement plays a very important role in our daily life. We often have to measure the distance between two places, the time passed between two events, the body temperature when someone is ill. Even a tailor also needs to measure the length of a piece of cloth. You have seen, no? That has to be stitched. A carpenter needs to measure, or an engineer needs to measure the length and height and width of the particular bridge or particular building. So, measurement is very important. What do you mean by measurement? Measurement is the process of comparing an unknown quantity with a fixed or standard quantity of the same kind. किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ उसे कंपेयर की जाती है. That is known as measurement. The standard with which a measurement is conducted is called unit of measurement. जिस स्टैंडर्ड से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट. A measurement express how many times the things being measured in terms of the unit. मैं उसे एग्जाम्पल देके समझाऊंगी. Suppose you want to measure a stick and we say that the stick is 15 centimeter long. उसका मतलब क्या है? This means that the length of the stick being measured 15 times of the length of the standard quantity. कोई भी standard quantity that is centimeter, हमने यहाँ पे 15 centimeter बोला, जैसे standard quantity centimeter के comparison में वो 15 centimeter long है. ठीक है बच्चों? So here centimeter is the unit. You say the distance between your home and school is 3 kilometer. Then the unit is kilometer. You say 2 hours I took to do this work. है ना? तो यहाँ पे R जो हो गया वो हो गया आपका यूनिट. तो ये सब यूनिट है. Even in previous class also you have learned different types of units in maths, है ना? इन एंशिएंट टाइम्स जो पुराने लोग थे वो भी मेजरमेंट के लिए डिफरेंट वेज यूज़ करते थे. लिटिल डिफरेंट था आज के ज़माने से. सो विल सी दैट ऑल्सो दे वर यूजिंग क्यूबिट, आर्म लेंथ, हैंड स्पैन, फुट स्टेप एज यूनिट. पहले आज जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब यूज़ नहीं होता था. दे वर यूजिंग क्यूबिट, आर्म लेंथ, हैंड स्पैन, फुट स्टेप फॉर लेंथ. एक एक करके देखते हैं कि ये सब क्या होता है. फर्स्ट इज क्यूबिट. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द क्यूबिट. व्हाट इज क्यूबिट? द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो. आपके एल्बो से लेके मिडिल फिंगर तक के जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है क्यूबिट. तो लेंथ नापने के लिए वो यूज़ करते थे. नेक्स्ट इज हैंड स्पैन. व्हाट इज हैंड स्पैन? आपके पाम को स्ट्रेच करो and then the length from the tip of the thumb to the little finger, है ना? थंब से लेके लिटिल फिंगर तक का जो लेंथ है उसे कहा जाएगा हैंड स्पैन. स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है? अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं. यू ऑल्सो डू समटाइम्स, है ना? लेंथ नापने के लिए आप यूज़ करते हो हैंड स्पैन. नेक्स्ट इज आर्म लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर. आपके शोल्डर से लेके मिडिल फिंगर तक एज शोन इन द पिक्चर जो लेंथ होता है उसे कहा जाता है आर्म लेंथ.
and the last one is footstep. ठीक है, the distance between the toe and the heel of the foot is called footstep. आपके टो से लेके हील तक का जो फुट का जो हील होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नोन एज फुटस्टेप. अभी भी हम करते हैं, वी यूज़ दिस मेजरमेंट सिस्टम टू मेज़र द लेंथ. करते हो ना आप भी कभी कभी. बट स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है जानते हो आप? मेरा हैंड स्पैन जितना है ज़रूरी नहीं कि आपका हैंड स्पैन का लेंथ भी उतना हो, या मेरा फुटस्टेप का लेंथ जो है आपका फुटस्टेप का लेंथ वैसा हो, ज़रूरी नहीं है ना. सपोज़ किसी का फुटस्टेप छोटा है और किसी का बड़ा है, और मैं बोलूँगी कि इस ग्राउंड को आप मेज़र करो, तो छोटे वाले फुटस्टेप से सपोज़ इट इज़ 60 फुटस्टेप्स और बड़े वाले फुटस्टेप से सपोज़ इट इज़ 50 फुटस्टेप्स. तो एक्यूरेट मेज़रमेंट हमें मिल रहा है? नो, वी आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट मेज़रमेंट. एंड सपोज़ बहुत लंबा डिस्टेंस को अगर हमें मेज़र करना है, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ ऑल दीज वेज ऑफ मेज़रमेंट, है ना. आपको मैं बोलूँगी आबू रोड से उदयपुर तक लेंथ आप मेज़र करो, डिस्टेंस मेज़र करो, देन वी कैन नॉट यूज़ दिस क्यूबिट और आर्म लेंथ और हैंड स्पैन और फुटस्टेप. बहुत लंबा टाइम लगेगा एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो. सो इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. To avoid this confusion, people realized the need of some standard units, है ना. ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत लोगों ने महसूस की, जो कि सबके लिए एक ही हो, कांस्टेंट हो. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स. ठीक है, SI units we have already done in class 5 maths. There are some SI units of physical quantities in this table. इस टेबल में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के SI यूनिट दिया हुआ है, that you have to learn by heart. And you know also length. SI unit is meter, symbol is M. Time का second, mass kilogram, temperature Kelvin, symbol is given below. You just see that. Even in another table, some useful relation between the different units of length